नमस्कार, इशारों इशारों में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको मालूम है कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट में एक फैसला आया और उस फैसले के बाद 3 बार कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठ गया अपने फैसले को ढंग से समझाने के लिए, वकीलों को, एसबीआई को, सरकार को ये बताने के लिए कि भाई हमने जो फैसला दिया था उसमें हम क्या मांग रहे थे और आपने क्या दे दिया। लेकिन इससे पहले कि वो फैसला शुरू होता है या उस पर बातचीत शुरू होती है, और ये मंडे की बात हो रही है, आइए आपको पहले सुनाते हैं एक छोटी सी क्लिप। इस क्लिप में आप सुनेंगे वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी को। आइए सुनते हैं। But I am appealing on behalf of the major Virat Industry Association, which is the ASSOCHAM, HT Virat, and CI. And we have filed applications today morning. Not The application is not numbered, it is not registered. We'll follow what source for the good is as for the character. Mr. Rodgi, sorry, no oral mentioning in my court. I'm not. I'm in the matter. I'm saying. I am saying. We have no such application on board. Let it be circulated. We'll deal with it in the normal course. But Virat, I am respectfully submitting it. Appearing for big client, we will not tolerate this. You have to follow the rules in my But court. Virat, if you not make an order today, my application will be infructuous. I am saying kindly defer the issue of grant of alphanumeric. You are aware about the proceeding going on. You could have intervened at that stage. What is this after the judgment is passed? You want to intervene now? Not the order is of 15th March. Ask No, but not, you are aware about the proceedings pending before this court. we were not parties anywhere. We were not parties at any time. Everybody, the whole world knew that this matter was being heard. Because I have no. Like 1 second, Mr. Rodgi. You come here after the judgment is delivered. You are now, you file an application. That's not the way. I have come only in regard to Circulated. 15th March. Kindly appreciate. No, Mr. I have no problem in declaration of the list of donors or the list of recipients. Mr. Rodgi will not hear you right now. We have a specific application on board. You ask your advocate on record to follow the procedure. File an email. It will be dealt with by my registrar listing. We'll take a, we'll get it. No. I am saying kindly. Not, If I do it for Mr. Rohatgi, senior counsel, then Mr. Rohatgi, you look at me. As Chief Justice, I have no face to tell all the other juniors to whom I declined list mentioning in the morning. What sauce for the goose is sauce for the gander. mentioning I am not appearing in the matter and making a submission. We have no such application on board before us. Sir, I have got it with I've made my, I have emailed their You wait. अब आपने जिनको सुना वो हैं मुकुल रोहतगी, वरिष्ठ वकील। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये अपीयर कर रहे थे फिक्की, एसोचैम और सीआईआई। अब आप जानते हैं ये कॉरपोरेट घरानों का एक समझ लीजिए कि एक एसोसिएशन है, और ये सारे जो कॉरपोरेट घराने हैं वो मिल करके अपना प्रतिनिधित्व इस फोरम के साथ करते हैं। तो क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड में नंबर सामने आना था, अल्फा न्यूमेरिक नंबर सामने आना था, तो एक ये कह लीजिए भय या संशय मन में था कॉरपोरेट्स के, जिसको मुकुल रोहतगी साहब जो हैं वो एड्रेस कर रहे थे। और उन्होंने ये बोला कि मैं फिक्की, सीआईआई और एसोचैम को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मेरी दरख्वास्त है, गुजारिश ये है कि कोर्ट जो है वो अल्फा न्यूमेरिक नंबर्स को पब्लिक ना करे। आपने जैसे कि सुना अभी कोर्ट की तरफ से क्या जवाब आया, जो तल्ख टिप्पणी थी आपने वो भी सुनी। पूरी चीज़ अब हिंदी में दर्शकों को बताते हैं। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जैसे ही मुकुल रोहतगी खड़े हुए और उन्होंने कहा कि मैं इन कॉरपोरेट घरानों के लिए खड़ा हो रहा हूँ और चाहता हूँ कि ये नंबर ना हो, अल्फा न्यूमेरिक नंबर की घोषणा आप ना कर दें, एसबीआई से ना मांग लें, तो उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं आपकी एप्लीकेशन तो नंबर्ड ही नहीं है, आपने तो प्रक्रिया का पालन ही नहीं किया। जब कोई भी मैटर आप लिस्टिंग के लिए चाहते हैं या आप सुनवाई चाहते हैं किसी चीज़ पर, तो उसका एक प्रक्रिया है एक अदालत में। आप ऐसे ही आ करके वरिष्ठ वकील होने के नाते आप अपना वर्चस्व कायम नहीं कर सकते। कानून सबके लिए समान है, और इस चीज़ का उल्लेख सीजीआई ने हमेशा बोला। ये नहीं कि आप बड़े वकील हैं तो आपने आए एप्लीकेशन लगाई, प्रक्रिया का पालन नहीं किया, लेकिन क्योंकि आप बड़े वकील हैं तो आप निकाल ले गए गाड़ी। उस चीज़ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोला नहीं, प्रॉपर तरीके से आइए। ये मामला यहीं ख़त्म नहीं हुआ। उसके बाद वो जब पीछे लगते रहे, बोलते रहे कि इसमें आप मेरी सुनवाई कर लें, मुझे सुन लें, तो उस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं कि यू आर अपियरिंग फॉर बिग क्लाइंट्स, आप बड़े लोगों के लिए अपियर कर रहे हैं, वी विल नॉट टॉलरेट दिस।
फिर मुकुल रोहतगी कहते हैं कि वो जो अल्फा न्यूमेरिक नंबर हैं आप उनको ज़रा अगर उस पर रोक लगा दें कि वो सामने ना आए, आप उसकी बात। तो उन्होंने बोला कि आप प्रोसीडिंग फॉलो कीजिए, उसके तहत आइए। तो उन्होंने कहा भाई उसके तहत आएंगे, और अगर आपने तब तक आज ये घोषणा कर दी कि अल्फा न्यूमेरिक नंबर बाहर आ जाए, तब तो मेरी ये जो प्रार्थना है ये बेकार हो जाएगी, इनफ्रक्चुअस हो जाएगी। फिर जजेस ने ये बोला कि अब आप सुध ले रहे हैं, कितने सालों से ये मामला अदालतों में चल रहा है, आप तब नहीं आए, इंडस्ट्री की तरफ से कोई नहीं आया, आप अब आ रहे हैं जब आदेश दे चुका है कोर्ट, जब फाइनल ऑर्डर हो चुका है, अब ऑर्डर को तो रिव्यू करेंगे नहीं। तो उन्होंने कहा कि हम तो इस मामले में पार्टी ही नहीं थे। मतलब ये इसमें जैसे कि आप जानते हैं सरकार थी, इलेक्टोरल बॉन्ड सरकारी स्कीम थी, एसबीआई था क्योंकि एसबीआई जो है वो हिसाब किताब रखती है। मुकुल रोहतगी साहब का ये कहना था कि कॉरपोरेट्स जो हैं वो तो पार्टी ही नहीं थे इस पूरे मामले में, उनको मालूम ही नहीं था। लेकिन ये दलील शायद कोर्ट को रास नहीं आई, पसंद नहीं आई, क्योंकि उनका ये कहना था कि ऐसा कैसे हो सकता है, आप जो हैं कह रहे हैं आप पार्टी नहीं थे, पूरी दुनिया को मालूम था कि ये मामला जो है वो अदालत में आ रहा है, आप तब एप्लीकेशन मूव कर देते। इस तरीके से आखिरी वक्त पर बड़े लोगों के लिए आप इस तरीके से यहाँ आकर के कोर्ट की कार्रवाई में बीच में सुनवाई की मांग नहीं कर सकते, तो वहाँ उनको डांट पड़ी। अब आइए आपको एक और क्लिप सुनाते हैं, और इस क्लिप से आपको पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले पर कोई भी ऐसा प्रयास जिससे जानकारी रोकने की बात कही गई, उस पर कोर्ट ने क्या जवाब दिया। आइए सुनाते हैं आपको एक और क्लिप। One at a time. Sorry, Mr. Rodney. Yes. No, my lord, my submission is the entire judgment has to render behind the back of the public at large. This judgment doesn't constitute custody cater. This doesn't constitute constitute custody cater. But, 1 second. Yes. 1 second. This judgment is void. Please listen to me. Yes. 1 second. I am a citizen of this country. 1 second. Yes. Don't shout at me. No, I am very soft. Please listen to me. Yes. This is not a hyper corner meeting, okay? You are in the court. Yes. You want to move an application? No, my lord. File an application. But- What I told Mr. Rodney applies to you. No, my lord, the question is, my lord, There are no question. You got, my friend has come. Mr. Nedumbara, 1 second. Yes. You got my decision as Chief Justice. We are not hearing you. If you want to file an application, move it on the email. That's the rule in this court. No, No, further- we will go by what you are watching on, please. Whatever you are watching, that is go by that. You want another contempt notice? No, my lord, your worship will go by whatever you want to say. Bombay. No, only I have said what I wanted to say. That this judgment is rendered behind the back of the people of this country. It doesn't bind us. It doesn't constitute us. It is not a do not sit on. Please, once we have said no, please move the But your lordship says, do not continue and persist. yes. I only said it was not a representative proceeding. But you are obstructing in the administration of justice. Pardon, my lord? You are obstructing in the process of administration of justice. The entire judgment is against behind the back of these people. Parliament has been rendered. That's all. That's all. We heard that. Please, that's all. Please, you made it. We will not hear you till you move follow the procedure prescribed. We are finding it. Please do. We are finding it. Please do. We'll consider it afterwards. This started at 10 o'clock. I- My friend came from Kerala to took a 1 o'clock flight. Be kind to us. Be kind to us. Don't please, we will not hear that. Then the moment is called for the application. Please follow that. Yeah. तो ये साहब जिनको आपने सुना, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से और बाकी वकीलों से डांट खा रहे थे, उनका नाम है एडवोकेट मैथ्यूज़ नेदुम्पारा। मैथ्यूज़ नेदुम्पारा जो हैं वो एक वकील थे जिन्होंने एक ऐसी बात बोल दी जो कि भयंकर रूप से विचित्र है। उन्होंने कहा द एंटायर जजमेंट इज बीन रेंडर्ड बिहाइंड द बैक ऑफ द पब्लिक एट लार्ज। आई एम अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, यानी कि आपने ये जो पूरा आदेश दिया है ये देश की जनता की पीठ के पीछे दिया है, देश की जनता के हित में नहीं दिया है। मैं देश की जनता हूँ, आपने हित में फैसला नहीं दिया है और उनकी मर्ज़ी और स्वीकृति से फैसला नहीं दिया है, ये उनकी मर्ज़ी के विरुद्ध जाकर के फैसला दिया है। और वो अपनी तमाम बात बोलते रहे, बोलते बोलते उत्तेजित हो गए, जैसे वकील लोग हो जाते हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को उन्हें याद दिलाना पड़ा कि ये कोर्ट रूम है, दिस इज़ नॉट हाइड पार्क कॉर्नर मीटिंग। हाइड पार्क क्या है, वो इंग्लैंड में, लंदन में एक बहुत बड़ा पार्क है और वहाँ पर अक्सर जो हैं वो लोग इकट्ठा होते हैं,
वहाँ पर मीटिंग्स करते हैं, वहाँ पर अपनी बात रखते हैं। तो हाइड पार्क कॉर्नर मीटिंग का मतलब ये होता है कि आप अगर कुछ भी पब्लिक इंटरेस्ट या जन समन्वय की अगर आप कोशिश करते हैं तो आप वहाँ पर हाइड पार्क कॉर्नर पर मिल करके आप वो कर सकते हैं। तो ये याद दिलाया गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्वारा एक वकील को, वरिष्ठ वकील को, जिनका नाम है मैथ्यूज नेदुम्पारा, कि ये कोई गली मोहल्ले में होने वाली मीटिंग नहीं है, ये कोर्ट रूम है और यहाँ पर फैसले बहुत सोच समझ करके किए गए हैं। और अगर आपने फिर और कुछ बोला तो एक और जज बोल पड़े कि मैं आप पर कंटेम्प्ट नोटिस मूव करूंगा, कंटेम्प्ट नोटिस। फिर वो बोले कि ये जो जजमेंट है ये बिहाइंड द बैक ऑफ द पीपल है, पार्लियामेंट जो है वो यूजलेस साबित हो गई है इस जजमेंट की वजह से, और इज दिस डेमोक्रेसी। सोचिए इससे जुड़े हुए कुछ बहुत, और ये जो नेदुम्पारा जी के बयान है इस पर एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ, ये कितनी बड़ी बात है कि एक वकील को ये लगता है कि लोकतंत्र सिर्फ और सिर्फ संसद है। बेसिक सिविक्स बच्चे से भी पूछेंगे ना, वो आपको 3 स्तंभ बताएगा लोकतंत्र के, जिसमें न्यायपालिका, जिसमें हमारा जो पार्लियामेंट है वो, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेचर, ये 3 स्तंभ हैं। मीडिया को भी बोला जाता है, लेकिन चलिए चौथा स्तंभ वो कभी आगे की बात करेंगे उसके बारे में। लेकिन 3 पिलर्स तो ये हैं, बचपन से हम सुनते आए हैं। ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट इज रेंडर्ड यूजलेस, दिस इज अ डेमोक्रेसी। तो क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लोकतंत्र का हिस्सा नहीं है? जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लेती है, उच्चतम न्यायालय लेती है, वो अलोकतांत्रिक फैसले होते हैं, वो लोकतंत्र के हित में नहीं होते हैं। और जो सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर कहने की है वो ये है कि नेदुम्पारा साहब का ये कहना है कि जजमेंट वॉज बिहाइंड द बैक ऑफ द पीपल, एंटायर जजमेंट वॉज रेंडर्ड बिहाइंड द बैक ऑफ द पीपल एट लार्ज, यानी कि लोगों की पीठ पीछे आपने ये फैसला ले लिया। तो नेदुम्पारा जी, आप वकील हैं, हम तो भाई ठहरे मामूली से पत्रकार। वकील होते हुए आपको ये मालूम होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले सुप्रीम कोर्ट में होते हैं, तथ्यों के आधार पर होते हैं, और वो फैसला होता है जो सही होता है, लोकप्रिय नहीं। भाई सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला लेने से पहले कभी आपने सुना है कि जज बोले हाँ हमें तो तथ्य ऐसे लग रहे हैं, लेकिन ज़रा एक बार वो रामलीला मैदान पर एक वो कर लें, लोगों से राय पूछ लें, लोगों का मन जान लें, मन टटोलने की लोग क्या चाहते हैं। ऐसे चलता है सुप्रीम कोर्ट, बिहाइंड द बैक ऑफ द पीपल। कभी आपने कोई जजमेंट देखा है इस तरीके से देते हुए? कोई जजमेंट ऐसा सुप्रीम कोर्ट का होता है बिहाइंड द बैक ऑफ द पीपल? कौन सा कोर्ट ने बड़ा मतलब पब्लिक ओपन कोर्ट सेटअप किया है? इस हिसाब से तो सारे फैसले बिहाइंड द बैक ऑफ द पीपल हैं। क्यों? क्योंकि वो अदालत के अंदर हो रहे हैं और रामलीला मैदान में थोड़ी हो रहे हैं, वो पटना के गांधी मैदान में थोड़ी हो रहे हैं, वो जयपुर के अमरूदों का बाग में थोड़ी हो रहे हैं। सारे फैसले कोर्ट रूम में होते हैं। तो ये वकील होकर के वो कैसी बात बोल गए, और उनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया याद दिला रहे हैं कि ये हाइड पार्क कॉर्नर मीटिंग नहीं है, ये कोर्ट है, ये अदालत है। तो जो सबसे बड़ा सवाल है कि ऐसी क्या बौखलाहट है कि एसबीआई वो नंबर ना दे दे, या जानकारी जो कोर्ट मांग रहा है वो जानकारी पब्लिक में ना आ जाए। इसके लिए ये वकील कोर्ट को और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ये याद दिला रहे हैं कि ये लोकतंत्र है, पार्लियामेंट जो है वो उसका कोई काम नहीं रह गया, ये लोगों की पीठ पीछे फैसला हो रहा है। आपको मालूम है कि अभी कल ही की बात है जब हरीश साल्वे और तुषार मेहता दोनों, क्योंकि हरीश साल्वे एसबीआई के वकील थे और तुषार मेहता सरकारी वकील हैं, एक लिहाज से आप ये समझ लीजिए दोनों ही सरकारी वकील, उनको बड़ी आपत्ति हो गई इस बात से कि ये जब से डेटा सामने आया है लोग इसके बारे में रिपोर्टिंग कर रहे हैं, इसके बारे में लिख पढ़ रहे हैं। उनका ये कहना है कि ये पब्लिसिटी के लिए अब लिटिगेशन भी फाइल होगी। और फिर कोर्ट को याद दिलाना पड़ा कि भाई जब इस तरीके की चीज़ें होती हैं और जब डॉक्यूमेंट पब्लिक डोमेन में आ जाता है तो हमारे कंधे इतने मजबूत हैं कि जो भी पब्लिक डोमेन में हो रहा है वो आप सहन करें या उसका वज़न अपने कंधों पर लें।
इस सब से एक ही सवाल बार बार निकल करके आ रहा है कि इस तरीके से आप कोर्ट में टिप्पणियां बतौर वकील कर रहे हैं जिसमें आप कोर्ट को उसी का काम करना सिखा रहे हैं, जजों को 5 जजीय बेंच जो है उसको आप वकालत सिखा रहे हैं, उसको आप कानून पढ़ा रहे हैं। ऐसी क्या मजबूरी है इन वकीलों की जो इस तरीके की बातें कर रहे हैं? मैं ये चीज़ मानता हूं कि विच हंटिंग नहीं होनी चाहिए और कोई गलत सूचना भी सामने नहीं आनी चाहिए। जैसे कि अगर कोई मिलान नहीं हो रहा है तो ज़बरदस्ती सोशल मीडिया पोस्ट में उसको ले करके एक भ्रामक प्रचार नहीं करना चाहिए, वो गलत है। और अगर कोई जानकारी गलत निकल के आ रही है आपके इन्वेस्टिगेशन से या आपकी बातचीत से, तो फिर आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी उसके लिए। फिर आपको ये बोलना पड़ेगा कि मुझसे गलती हो गई, क्योंकि अगर आप माफ़ी नहीं मांगेंगे और उस पर अड़े रहेंगे तब ये षड्यंत्र की श्रेणी में आता है कि आप जानबूझ के कुछ गड़बड़ कर रहे थे। गैर इरादतन कुछ गड़बड़ हो जाती है वो बात अलग, लेकिन ये दिस इज ट्रू फॉर ऑल इंफॉर्मेशन इन द पब्लिक डोमेन। पब्लिक डोमेन में जब कोई जानकारी आ जाती है, जैसे कि इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा आ गया है, अब ये जनहित में जारी है, पब्लिक डोमेन में डेटा है। अब पब्लिक इसको किस तरीके से इंटरप्रेट करे, इसको कैसे देखे, वो उनके ऊपर है। इन वकीलों को इतनी दिक्कत क्यों है कि ये कोर्ट में ऐसी दलील दे रहे हैं, कोर्ट को उसका काम करना सिखा रहे हैं और फिर फटकार भी लग रही है। अब थर्सडे तक एसबीआई को सारी जानकारी देते हुए एक हलफनामा भी देना होगा कि हमने सारी जानकारी दे दी, कट-फट करके नहीं, सारी जानकारी। तब ये वकील क्या कहेंगे हम देखेंगे। तो इशारों में आज इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।